Hello, good afternoon to all of you. Are you able to hear my voice? आवाज येतोय का माझा? हॅलो, अनम्यूट करून सांगा कोणी पण आवाज येते तर. हॅलो हॅलो, आवाज येतोय का हो माझा? सर येते आवाज. हो सर ठीक येते. ठीक आहे. तर आपण now we will go next part of our practical, that is we are going to see how in a parallel circuit how to measure the voltage and current in a parallel circuit. तो अभी यहाँ पर देखिए, कल हमने सीरीज सर्किट का एग्जांपल देखा था, आज हम पैरेलल सर्किट देखते हैं। पैरेलल सर्किट में ये अपना सोर्स बैटरी है, यहाँ पे फ्यूज है, यहाँ पे स्विच है, ये अपना लैंप नंबर 1 है, लैंप नंबर 2 एंड लैंप नंबर 3। तो इन दिस अरेंजमेंट हम क्या करेंगे, पैरेलल सर्किट में we will measure the voltage across this battery by connecting the multimeter, okay, or the voltmeter in parallel with this battery. Also, next is the voltage across the lamps. Now, to measure the voltage across the lamps, you have to connect the voltmeter in parallel with this load. Similarly, for these two bulbs also. And what voltage you are getting for this individual lamps, we have to compare with this source voltage. So this is our today's practical. We will start performing this practical. Now सगळ्यांना ही विंडो दिसते का? नवीन विंडो? हेलो, क्या सभी को न्यू विंडो दिखाई दे रहा है? हाँ, अनम्यूट करून सांगा कोणी पण. सूरज बनकर, अंकुश. हॅलो हॅलो, आवाज येतोय का माझा? हो सर येते. नवीन विंडो दिसली का सॉफ्टवेअरची? हो ओके. आता इथं बघा, मी आता माझा व्होल्टेज सोर्स प्लेस केलेला आहे. इथं मी हो जे ऑटोमोबाईल्स मध्ये 12 व्होल्ट असतं, त्यामुळे मी इथं किती करणार आहे, 12 व्होल्ट इथं मी करणार आहे. तर त्यासाठी मला ही सिस्टम पहिले सिलेक्ट करून घ्यावी लागेल. इथं व्होल्टेजची व्हॅल्यू मी किती करत आहे, 12. ठीक आहे. नेक्स्ट जे आहे, मी काय करणार आहे, आय एम गोइंग टू ऍड द लोड इन दिस सर्किट. ठीक आहे. तर त्यासाठी आय एम गोइंग टू use the lamps. Okay, so where is that lamp? So this is this LED lamp. Okay, so this is that lamp, lamp number 2 and lamp number 3. Okay, these are the 3 lamps, and these 3 lamps we are going to connect in parallel. ठीक है, तो पैरेलल में इनको कनेक्ट करना है. तो कैसे कनेक्ट करना? Suppose I will take here this and I will try to rotate this. So I will try to, yes, rotate this. So this matches with our diagram in the book. Now I am going to add one switch. Where is the switch? So here is that switch. So I am going to add this switch, S1.
Okay. Now I will connect this diagram. Before that, I will add one ground here. This is the location of the ground. Why ground is required? That I have made it clear in first lecture. Sorry, connection is not proper. Hmm. So in this way, we have made this a parallel circuit. Here we are having 3 bulbs and this is our voltage source. Now we require the multimeters to measure this, we can say voltages. So I am going to select this multimeter from here. So this is the multimeter. I will place one multimeter over here. Okay. So this is very big in size. One over here and one over here. One here, one. Yeah, okay. So we have placed these 3 multimeters. Okay. Now what I will do, I will rotate it in such a manner. So it helps us. Here I have got very less space. I have moved this here. Delete it again. Draw. Okay. Here also the connection is open. I have closed this connection. Now again I will make this over here. It. Okay. And select this. I will also rotate this. I will connect this multimeter across it. And last one is this. I will rotate in this manner. I am going to connect your this. Okay. So these are the 3 voltmeters. These 3 voltmeters I am using for measuring the voltage across these bulbs. Now I am going to connect this voltmeter across this load. So these voltmeters are connected. Again, I will use this 1 voltmeter for this source voltage. I will connect this to the source. Okay. Now, in this way, I have made one parallel circuit, and for measurement of these voltages, I have connected these voltmeters across this parallel circuit. Now, I am going to run this circuit. Before that, I am going to save this. Okay. So I have saved it successfully. Now I am going to run this circuit.
Okay, now see here, the voltage across here, it is indicating 0 volt. Okay, now here they are also indicating some voltages, but its value is negligible. Now I am going to close this circuit and going to run this. Okay, now see here, all these 3 bulbs are lighted now. Okay, now here you are getting the 0 volt here. Here you are getting around minus 11.383, and here. So I think here there could be some problem. So here these two are not going to work properly. This is the source voltage and this is the source voltage. So again, here there is some problem in our circuit. That is why we are not getting here the proper reading. Okay, here we should get this around 12 volts reading. Okay, so what is that problem we are going to see now? I will again delete this. Okay. And again, I am going to put one multimeter over here. This multimeter, we are going to rotate this multimeter and connect this multimeter across this load. Okay. Now I am again going to run this circuit. Okay, here is some problem. Just leave this. Here we are getting some open connection. That is why the voltmeter is showing no reading. We will correct this fault. Going to put here this. And here also delete this. Okay, in this manner we were having very less space, and here the connections were not in the proper manner. That is why I have put this this voltmeter in upward position, and now we are going to run this circuit. Now see here, now our connections are proper here. Here the source voltage is around 12 volts. Okay, here this voltage is also around minus 11.383, because here we can see there is a drop in voltage because in the resistances in the wire. Here also in everywhere we are getting the same voltages. Now see here in LED number 1, the voltage is here this. Okay, now see why here we are getting the minus value. Okay, because we have connected this plus to this negative terminal and this plus to this negative terminal.
Okay, here also we have connected this positive to this negative terminal. That is why we are getting the different readings here. Okay, that are in the negative value. Now see here, I am going to interchange this. Okay, so we will get the plus sign in our value. Okay, so what I am going to do now, see here, and delete. Okay, now again I am going to fill, I am again going to make connection so that the resulting sign you get it as a plus sign, connecting this to this and this negative terminal to this negative terminal. Now I am going to run this circuit now. See here, the negative sign has gone. अभी यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज ये प्लस को मैंने यहाँ का प्लस कनेक्ट किया और ये नेगेटिव को यहाँ का नेगेटिव कनेक्ट किया. तो यहाँ पर देखो ये प्रॉपर रीडिंग आया. तो सिमिलरली अगर मैं ये तीनों पोजीशन का मैं अगर ये करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा? अलग रीडिंग से पॉजिटिव में मिलेगा. तो अगेन आई एम गोइंग टू चेंज दिस रीडिंग्स. Okay, now this positive terminal I am going to connect with this, and this negative terminal I am going to connect with this negative. Okay, similarly I am going to delete this now. Okay, now here I am going to place this multimeter here. Okay, हाँ, सभी को आवाज आ रहा है मेरा? हेलो हेलो, सूरज बनकर आवाज येतोय का? हेलो यश जाधव, आवाज येतोय का? हेलो हेलो, can you hear my voice? हेलो हेलो, आवाज येतोय का? हेलो, can you hear my voice? यश जाधव, तुमचा आवाज येत नाही मला. हेलो, सूरज बनकर, आवाज येतोय का? हेलो हेलो. हा, येतोय का सूर आवाज? हो सर येते. बर बर बर, ठीक आहे. मी परत आता स्क्रीन शेअर करतो. बाकीचे मग आपण ठीक आहे ना, बाकीचे कॉस्ट बरं. हा ते आहे ना, बरं ते बघू आपण, त्याचा काही issue नाही. हा हा बरोबर. हा ते पण आहे. ठीक आहे. हा हा ते आहे, पण तिकडून पण बघू तिकडे ड्रायव्हर भेट करता आला किंवा तिकडचं कारण आम्हाला कसं ऍडव्हान्स हॅलो, हा आम्हाला सूरज, आवाज येतोय का? हॅलो सूरज, कॅन यू हिअर मी? हेलो, यस, सूरज बनकर, यस जाधव, कॅन यू हिअर मी? हेलो, okay. Now here in this diagram I have connected these different components. Okay,
in parallel. Okay, now I am going to check this circuit. Now see here, all these values are in positive. Okay, here this value is negative. Okay, because the connection here is we can say not happen in a proper way. Again, I will do this. Okay. Now this positive terminal I am connecting with this, and this negative terminal I am going to connect with this. Okay, now again I am going to run this circuit. Now see here, all these values are in positive. Okay, now here because these values are positive, क्यों positive है? क्योंकि हमने यहाँ पे हर एक एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया, इसका नेगेटिव इस नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो कनेक्शन हमारे आर इन द प्रॉपर वे. तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू अभी अपने को मिल गया. अभी आप देख सकते हो कि हर एक लोड के अगेंस्ट जो वोल्टेज है दैट इज वी कैन से सोर्स के वोल्टेज के बराबर का वोल्टेज है. सोर्स का वोल्टेज है 12 वोल्ट्स, तो एलईडी 1 का वोल्टेज है 11.383 वोल्ट्स. तो इसका मतलब क्या है, 12 वोल्ट से थोड़ा सा कम वोल्टेज है एलईडी 1 के ऊपर है. थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप आपने जो लाइन से बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर, इसके वजह से थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप होता है. और सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ये तीनों एलईडी में अगर हमने मेजर किया पैरेलल सर्किट में, तो तीनों केस में जो वोल्टेज है तीनों केस में सेम है. ठीक है, वाई सेम है? बिकॉज इट इज इन द पैरेलल. ये सर्किट हमारा पैरेलल सर्किट है, इसके वजह से तीनों इसमें हमारा ये क्या है, आवर वोल्टेज इज सेम. ठीक है. हाँ, हेलो सूरज, सूरज बनकर आवाज येतोय का ऐकू? यश जाधव. हो सर येतोय. हा, ही फिगर डायग्राम समजली का तुम्हाला? हॅलो हॅलो, डायग्राम समजली का? परत एकदा एक्सप्लेन करू? यश जाधव. हाँ, now see here, now next important thing is current measurement. अभी मैं क्या करूँगा, अभी इसको मैं I will open this. Okay, now I will convert all this in this ammeters. Okay, इसको मैंने एमीटर में कन्वर्ट किया, इसको भी मैं क्या करूँगा अभी एमीटर में कन्वर्ट करूँगा, इसको भी I will make in एमीटर, एंड इसको भी मैं क्या करूँगा अभी एमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा. ठीक है, अभी ये कन्वर्जन करने के बाद आई विल मेजर व्हाट इज द करंट. ओके, नाउ यहाँ पर देखो कि तीनों केस में आई विल नाउ क्लोज एंड आई विल मेजर. ठीक है, नाउ सी हियर, ये जो करंट है कि करंट आपने को यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो कनेक्शन है ना ये करंट का, इट इज नॉट इन अ प्रॉपर वे. तो प्रॉपर कनेक्शन कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ. सी हियर, ये अभी हमने वोल्टेज मेजर किया था. नाउ नेक्स्ट इज द मेजरमेंट ऑफ द करंट. तो करंट मेजर करने के लिए अपने को ये ऐसे हिसाब से सर्किट लगाना है, तभी अपने को करंट मेजर होगा. मेजर डिफरेंस क्या है कि पैरेलल हो या सीरीज हो, कौन सा भी सर्किट होगा तो अपने को ये जो करंट मेजर करने के लिए एमीटर अपने को उसको सीरीज में ही कनेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो आई विल नाउ शो यू द कनेक्शंस ऑफ अ पैरेलल सर्किट टू मेजर द करंट. Now see here, now I am going to change this
circuits. Okay. Okay. Now here this ये वायर भी मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है, और इसको भी डिलीट कर दूंगा. तो अभी क्या करूंगा मैं, आई विल कनेक्ट दिस एज द सोर्स एमीटर. ये है अपना यहाँ का, सॉरी इसको थोड़ा सा पीछे लेता हूँ. ठीक है, अभी ये सब सर्किट मैंने क्या, ये अपना स्विच है, इस स्विच के आगे सोर्स का करंट रहेगा, ये होगा दिस करंट थ्रू दिस यहाँ का, दिस फ्रॉम द एलईडी 2 एंड दिस वन इज फॉर द एलईडी 3. इसको ऐसा बीच में रख देता हूँ, सो वी विल गेट दिस प्रॉपर. अभी देखो कनेक्शन कैसे किया जाता है. पहले वोल्टेज सोर्स को यहाँ पर, फिर यहाँ से ये पॉइंट को, फिर ये पॉइंट से ऐसा है आगे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कि ऐसा आगे. फिर यहाँ आने के बाद आई विल शो यू द सर्किट नाउ वंस मोर. ठीक है, यहाँ से आने के बाद ये लाइन जाएगा, ये लाइन के बीच में अपने को इसको फिट करना है, ठीक है. सो देयर इज अ कॉमन लाइन फॉर दिस 3 लोड्स, सो वी विल मेंटेन दिस कॉमन लाइन. अभी I will open this circuit and we have to draw this common line for this 3 load. ठीक है, यहाँ तक की कॉमन लाइन हमने बना दिया. यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से ये कॉमन लाइन हमने बना दिया, ठीक है. अभी इनको थोड़ा सा नीचे हम लेते हैं. Now here चाहिए, इसको फिर हम यहाँ से इसको, ओके, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. फिर इसको हम यहाँ से यहाँ तक, इसको जो है यहाँ तक. Similarly for this, okay. अभी हम इसको ब्रेक किया. ठीक है, इस हिसाब से तीनों एलईडी कनेक्ट किए. फिर यहाँ से होके हम यहाँ तक ऑन तक लेके आएंगे और इसको यहाँ से हमने सर्किट को कंटिन्यूटी पूरा किया. कंटिन्यूटी होने के बाद ये तीनों, ये दोनों लोड को किसको कनेक्ट करना है, अपने को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है. तो हमने ये 2 लोड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया. ठीक है, अभी ये जो है इसको हम क्या करेंगे, तीनों एमीटर हमने सेट किया है. ठीक है, अभी मैं सर्किट इसको रन करता हूँ. नाउ यहाँ पर देखिए, ये
ये है अपना सोर्स का करंट, ठीक है, और ये होगा करंट विच इज गोइंग टू एलईडी 1। ये जो पहला मल्टीमीटर है ना, तो पहला एलईडी ने कितना करंट जाता है ये आपने को पहला बताता है। सिमिलरली सेकेंड, तीसरा, तो अगर आपने ये जो वैल्यू है 189.102, इसको अगर आपने तीनों का एडिशन किया, ये तीनों का आपने एडिशन किया तो आपको वैल्यू आ जाएगा इतना, ठीक है। सपोज 189.102 प्लस 189.102 प्लस 189.102, ये तीनों का अगर आपने एडिशन किया, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस 567.306, ये वैल्यू ये आ जाएगा। तो मतलब क्या है, ये जो करंट है, ये करंट ये बल्ब्स में डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या है, करंट इज डिवाइडेड इन 3 दिस बल्ब्स, ओके। तो ये है अपना, ये अपना जो सर्किट है, कौन सा सर्किट, पैरेलल सर्किट में करंट का कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये आज हमने देखा। तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या, नहीं, पैरेलल सर्किट में अपना करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कि हमने पहले देखा था, वोल्टेज तीनों बल्ब के अक्रॉस सेम रहता था, सिर्फ थोड़ा सा ड्रॉप होता था, ठीक है। क्यों होता था, क्यों, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंसेस इन द वायर्स। अभी लेकिन जो करंट है, करंट क्या है, तीनों बल्ब में करंट सेम है, लेकिन इनका अगर हमने एडिशन किया, दैट इज इक्वल टू दिस सोर्स करंट, ठीक है। तो सोर्स करंट तीनों इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। ये कंसेप्ट सभी को समझ में आया अभी? सूरज समझ लो का कंसेप्ट, सूरज बनकर, यश सर. जाधव, काही डाऊट असलं तर आता तुम्ही क्लिअर करून घ्या, ठीक आहे. So this we have completed this practical. Now we are going to see what is the questions which are asked. Now यहाँ पर देखो कि हमने ये जो था, कौन सा था, ये सर्किट था, इस सर्किट को हमने यहाँ पे पूरा किया। तो ये सर्किट में अपने को सोर्स का करंट कितना था, ये लैंप 1 का कितना था, लैंप 2 का कितना था, लैंप 3 का कितना था, ठीक है। तो इसको आपने ये इसमें मेंशन लिखना है आपने को, ये आपको आपके वर्ड्स में लिखना है। और सिमिलरली इसके ऊपर का ये जो था, ये क्या था अपना, ये वोल्टेज अक्रॉस लोड्स कनेक्टेड इन पैरेलल, इसमें भी आपको सोर्स वोल्टेज कितना था, voltage across this lamp 1, voltage across this lamp 2 and voltage across this lamp 3, इन तीनों का आपको यहाँ पे मेंशन करना है वोल्टेज कितना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको इसका कंक्लूजन लिखना है कि व्हाट यू हैव ऑब्जर्व इन दिस पैरेलल सर्किट रिगार्डिंग दिस वोल्टेज, ठीक है। तो दिस इज द टास्क फॉर यू फॉर होमवर्क, आपको ये होमवर्क में कंप्लीट करना है, ठीक है। कोई किसी को दिक्कत, कुछ किसी को प्रॉब्लम होगा तो अभी पूछ लो। Okay, now I will stop this lecture now. I will send this recorded lecture in our WhatsApp group. Okay.